Hey guys, hi to all. In this video, you will be getting the question answer of Poets and Pancakes. Here, this question is at page number 59, and the question is, what does the writer mean by fiery misery of those subjected to makeup? Answer of this question is, makeup room of Gemini Studios looked like a hair cutting salon. It had around half a dozen mirrors with incandescent light at all angles around them. The artist would feel the heat emanating from these lights. Thus, the writer uses the term fiery misery to denote the uncomfortable situation of those subjected to makeup. It means that कि जो lights थी, incandescent lights से जो heat emerge हो रही थी उन rooms में, उसकी वजह से वहाँ का temperature या फिर जो room था वो काफ़ी heated up था. उसकी वजह से जो मेकअप करवाने वाले आर्टिस्ट थे लाइक एक्टर और एक्ट्रेसेस उनको काफ़ी ज़्यादा डिसकम्फर्टेबल सिचुएशंस का सामना करना पड़ता था. उसकी वजह से ये यहाँ पे वर्ड जो है फायरी मिजरी वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है. नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू? So here the answer is the makeup division of the Gemini Studio was an example of national integration. According to the author, this is so because people from different regions and religions means religious groups work together in the same department. The department was headed by a Bengali who was succeeded by a Maharashtrian. The other helpers included a Dharwar, Kandiga, and Andhra, a Madras, Indian Christian, and Anglo-Burmese are the local Tamils. So here we are getting that people who were from different regions and religious groups, they were working unitedly in this Gemini Studio, and because they were from different regions and religious groups, one can definitely say that they were showing the example of national integration among themselves. Now question number 3 is, what did the office boy do in the Gemini Studios? Why did he join the studio? Why was he disappointed? So office boy's name is office boy, but actual में वो boy नहीं था. He was around 40, and ऑफिस बॉय जो है ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकअप ऑफ पीपल who formed part of crowd in the films. Because we have read the text and text के बीच में ये बताया हुआ है कि क्राउड मेकअप के लिए ऑफिस बॉय जो है उसको चूज़ किया गया था. He used to mix his paint in a giant vessel and slap the paint on the faces of the players, means the crowd. He had joined the Gemini Studio years ago, aspiring to become an actor or a scriptwriter or a director or a lyricist. He was disappointed with the studio that failed to recognize his talent. He called it a department fit only for barbers and perverts. Barbers is a very simple word, I think you must be aware of, and perverts means those who copy others. Now question number 4 is, why did the author appear to be doing nothing at the studio? So we got about Asoka Mitran that he was the author of this chapter, and he has called himself like, my role was not that much significant in the studio, because उसका काम था न्यूज़पेपर क्लिपिंग को इकट्ठा करना जो इम्पोर्टेंट है और उनको एक फ़ाइल में स्टोर करके रखना. So the answer of this question is, the job of the author was to cut newspaper clippings and file them, or to store them in a file. For the other employees, all he seemed to be doing is tearing newspaper, which according to them did not qualify as work. बाकियों के लिए, बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए उनको ये लगता था कि वो कुछ भी काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ न्यूज़पेपर को फाड़ते हैं और उनको काट के अपना काम जो है लाइक फाइल में स्टोर करना क्लिपिंग्स को, तो उनके अकॉर्डिंग ये जो है ये वर्क नहीं था. ओके, सो दिस इज़ पेज नंबर 61. क्वेश्चन नंबर 1 इज़,
Why was the office boy frustrated? Who did he show his anger on? So, Office Boy had joined the studio years ago in the hope of becoming an actor or a screenwriter or a director or a lyricist. The fact that he ended up becoming none of these left him frustrated. According to him, great literary talent was being allowed to go waste in the department fit only for barbers and perverts. He used to direct his anger at the author even though it was meant for Kothamangalam Subbu. सो हेयर वी गॉट दैट ऑफिस बॉय जो था उसने स्टूडियो ज्वाइन तो किया था बहुत सालों पहले इस होप में कि वो एक्टर बन जाएगा, स्क्रीन राइटर बन जाएगा, नहीं तो डायरेक्टर या फिर लिरिसिस्ट. लेकिन असल में हुआ क्या कि जब एंड ऑफ द डे उसको ये पता चलता है कि वो कुछ भी नहीं बन पाया है, तो उसके बाद उसको ये लगता है कि नो बडी इज़ एक्नॉलेजिंग माई टैलेंट, सो इट इज़ जस्ट गोइंग इन वेस्ट. इसलिए वो यहाँ पे बोलता है कि ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट इन अ डिपार्टमेंट विच इज़ फिट फॉर बार्बर्स एंड परवर्ड्स. और अपना गुस्सा जो है वो या तो ऑथर के ऊपर, अशोकामित्रन के ऊपर, या फिर कोठामंगलम सुब्बू के ऊपर जो है वो शो करता हुआ हमें दिखता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हु वॉज सुब्बूज प्रिंसिपल. सो प्रिंसिपल यहाँ पे बोला है बॉस को. बॉस जो है वो डायरेक्टर भी है और उनका नाम है S.S. वसन. सो हेयर द आंसर इज द बॉस हु वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ जिमिनाई स्टूडियोज वॉज सुब्बूज प्रिंसिपल. जो बॉस थे इस स्टूडियो के वही सुब्बू के प्रिंसिपल थे. उनका नाम S.S. वसन था जिनको डायरेक्टर भी बोलते थे. Question number 3 is Subbu is described as many-sided genius. List 4 of his special abilities. So हमने सुब्बू के बारे में पढ़ा कि he was from a Brahmin family and he was a virtuous boy, even though he always remains cheerful in any of the condition or in any of the situations. So answer of this question is Subbu was a multidisciplinarian. He could provide solution to problems, could remain cheerful all the time and was an actor, a poet and a novelist. So सुब्बू के बीच में बहुत सारी क्वालिटीज़ थी. वो मल्टी टैलेंटेड पर्सन था. वो किसी को भी कन्विंस कर सकता था अपना काम करवाने के लिए और वो हमेशा खुश रहता था. क्वेश्चन नंबर 4 at page number 61 is why was the legal advisor referred as the opposite by others. लीगल एडवाइज़र जो हैं वो लॉयर्स हैं और उनको उल्टा क्यों बोला गया है बाकियों के द्वारा. इसका आंसर ये है कि जो लॉयर्स हैं दे यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट ऑफ जिमिनाई स्टूडियोज दो अ लीगल एडवाइज़र वॉज सपोज टू बी इन्वॉल्व इन लीगल मैटर्स. His cagey yet stupid idea led to the end of an actress' career. Due to this, he was referred to as the opposite of a legal advisor by the people. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो लॉयर्स होते हैं या फिर जो लीगल एडवाइज़र होते हैं वो हमेशा लीगल वर्क करते हैं या लीगल मैटर्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है. बट यहाँ पे जो लॉयर्स थे या फिर जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो लीगल एडवाइज़र हैं उसको अपोजिट क्यों बोला है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि एक एक्टर जो है, एक्ट्रेस जो है, उसका झगड़ा हो रहा होता है और कैमरामैन जो है वो उसका ये जो सीन है उसको कैप्चर करके उसको बाद में दिखाते हैं जब वो झगड़ा ख़त्म हो जाता है. उसके बाद वो जो एक्ट्रेस है शी डिसाइडेड दैट आई विल नॉट परस्यू दिस करियर एनी मोर इन माई लाइफ एंड दिस वुड बी माई लास्ट मूवी विच आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग हेयर. सो इसी वजह से जो है इन लॉयर्स को इलीगल जो एडवाइज़र हैं या इलीगल मैटर्स में इंटरफेयर करने की वजह से वो उनको अपोजिट बोला जाता था कि वो लीगल एडवाइज़र्स नहीं हैं, वो इलीगल एडवाइज़र बन चुके हैं बाय द पीपल. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स एट जिमिनाई स्टूडियोज़. तो बाकियों से वो कैसे डिफरेंट थे, बिकॉज बाकी जो है वो धोती कुर्ता पहनते थे, खादी की कुर्ती और धोती पहनते थे जो ओवरसाइज होती थी. लेकिन यहाँ पे जो लॉयर्स हैं वो हमेशा पैंट, टाई,
कोट पहनते थे सम टाइम, और बाकी जो स्टोरी डिपार्टमेंट है वो बाकी वही खादी धोती वगैरह ही पहनते थे। तो यहाँ पे ये सब जो है इनको बाकी लोगों से, जो स्टूडियो में काम करने वाले थे, उनसे इनको डिफरेंट जो है इनकी अपीयरेंस डिफरेंट होती थी। So question number 1 at page number 64 is, did the people at Gemini Studios have any particular political affiliations? तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो पीपल हैं जेमिनाई स्टूडियो के, दे डिड नॉट हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशंस एंड द कॉमन पॉलिटिकल नोशंस ऑफ द डे मैनेज टू इन्फ्लुएंस देम, बट that was limited to wearing khadi and admiring the Gandhian philosophy. They were averse to them communism, but had only an erroneous understanding of the concept. Actually, जो लोग थे यहाँ पे इनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं था, बट येस वो इन्फ्लुएंस थे कि वो खादी और धोती जो हैं उसको यूज़ करें। एक्चुअली दे वर एडमायरिंग गांधीयन फिलॉसफी, लेकिन उनको कम्युनिज्म के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट येस दे वर ट्राइंग टू गेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म. And question number 2 is, why was the Moral Rearmament Army welcomed at the studio? Moral Rearmament Army, जिसको MRA बोला है बुक में, उसको वेलकम कैसे मिला, क्यों मिला था? So answer of this question is, Frank Buckman's Moral Rearmament Army was welcomed at the studio mainly because of their political association. The people at the Gemini Studios were averse to communism and hence were ready to play host to the MRA. Apart from that, the studio people hardly had any occupation and suffered from boredom. The MRA came as a welcome change to their monotonous days at the studio. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि उनको वेलकम इसलिए मिला क्योंकि उनका पॉलिटिकल एसोसिएशन जो था, एक तो उसकी वजह से, और जो लोग थे जिमिनाई स्टूडियोज़ के, उनको कम्युनिज़म के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो इस प्ले को होस्ट करने के लिए रेडी हो गए. तो उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि स्टूडियो के जो पीपल हैं उनके पास ज़्यादा काम नहीं था, वो बोर्डम फील करते थे, और MRA जो है उनको ऐसे वेलकम मिलता है कि जैसे उन्होंने उन लोगों की बोर्डम को चेंज करके उनके जो मोनोटोनस डेज थे, जो हम बोलते हैं नॉट इंटरेस्टिंग डेज होते हैं स्टूडियो में, उनको चेंज करने के लिए दे वर एनफ. Question number 3 at page number 64 is, name one example to show that Gemini Studio was influenced by plays staged by MRA. So यहाँ पे जो बात होती है उसमें हमें एक एग्जाम्पल बतानी है. Madras and Tamil drama community included scene of sunset and sunrise in the manner of Jotham Valley in almost all of their plays. This show how the plays staged by MRA influenced Gemini Studio. तो एक ही एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जो मैड्रास और तमिल के जो ड्रामा थे उनकी कम्युनिटी जो है वो सीन्स इंक्लूड करती है सनसेट और सनराइज़ के जॉथम वैली के लिए, जो ऑलमोस्ट उनके प्लेस में होता ही है. यही बताता है हमें कि वो किस तरीके से अपनी प्लेस जो है उनको स्टेज करते थे, और यही जो है इसी चीज़ से जेमिनाई स्टूडियोज़ के जो लोग थे या वर्कर थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. हु वॉज द बॉस ऑफ जेमिनाई स्टूडियो? सो मैंने इसको पहले भी बताया. बॉस जो है प्रिंसिपल जिसको बोला है, डायरेक्टर जिसको बोला है, और उनका नाम है SS वसन, जो फाउंडर भी हैं जेमिनाई स्टूडियोज़ के. What caused the lack of communication between the Englishman and the people at Gemini Studios? तो इंग्लिशमैन जो है वो तो है स्टेफन स्पेंडर, और जेमिनाई स्टूडियोज़ के लोगों को ज़्यादातर एक्सेंट जो है उनका इंग्लिश वो इतना समझ नहीं आता, इसीलिए उनके बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो होती है. So answer of this question is, the accent of Stephen Spender, the Englishman, was the cause of the lack of communication between him and the people at Gemini Studios. Apart from that, the people did not have any idea about what he was talking. मतलब वो जो भी बात करके वहाँ पे चले जाते हैं लेक्चर डिलीवर करके, लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो किस टॉपिक के ऊपर बात करके गए हैं. Even they did not get any of the thing which was spoken by Stephen Spender when he was delivering by holding a mic
on the stage. Question number 6 is, why is the Englishman's visit referred to an unexplained mystery? इंग्लिशमैन का विजिट जो है उसको रेफर ऐसे क्यों बोला गया है कि मतलब वो एक रहस्य बन के रह जाता है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द इंग्लिशमैन्स विजिट टू द जिमिनाई स्टूडियो इज रेफर्ड टू एज एन unexplained mystery because no one could decipher his identity, whether he was a poet or an editor. Besides, when he spoke, no one at the studio understood what he intended to say as his accent was beyond their comprehension. तो मोस्टली वहाँ पे लोगों को पता नहीं चलता कि वो बोल क्या रहे हैं, कोई भी उनकी आइडेंटिटी को पहचान नहीं पाता है, और ये भी पता नहीं चलता कि वो कोई पोइट हैं या एडिटर हैं. इसके अलावा वो जब बात करते हैं, पहले तो वो बोलते ही नहीं है, लेकिन जब वो बात करते हैं तो उनका एक्सेंट जो है उनकी कॉम्प्रीहेंशन के बहुत ज़्यादा पीछे होता है. लाइक उनको समझ ही नहीं आता कि व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से. सो क्वेश्चन नंबर 1 at पेज नंबर 65 इज़ हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो. तो ये हमें पता है कि इंग्लिश विजिटर जो है जिमिनाई स्टूडियोज़ में जो आते हैं वो हैं स्टेफन स्पेंडर. वो एडिटर हैं द इनकाउंटर के, जो ब्रिटिश पीरियोडिकल था, एंड फेमस इंग्लिश पोइट हैं, वो एसेइस्ट हैं, नॉवलिस्ट हैं ऑफ 20th सेंचुरी. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वॉज. कैसे पता चलता है ऑथर को, अशोका मित्रन को, वो कैसे डिस्कवर करते हैं कि जो इंग्लिश विजिटर था जो स्टूडियो में आए थे वो कौन थे. Before investing money in participating a short story contest organized by an English periodical, The Encounter, the author did a research on the magazine. He went to the British Council Library where, while going through an issue of that periodical, he discovered that its editor was Stephen Spender, the poet that had once visited the studio. तो एक्चुअली उनको पार्टिसिपेशन करना होता है शॉर्ट स्टोरी राइटिंग के लिए, और जब वो विज़िटिंग करते हैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में, अशोका मित्रन की बात हो रही है, जब वो लाइब्रेरी विज़िट करते हैं तो उनको वहाँ पे वही जो पीरियोडिकल है वो दिखता है, और जब वो पढ़ते हैं उसको और वहाँ पे उन पढ़ते हैं कि ये जो पोइट है ये कौन है, स्टेफन स्पेंडर हैं, जिन्होंने एक बार हमारे जिमिनाई स्टूडियोज़ में विज़िट किया था. तो यहाँ पे उनको रीडिस्कवर होता है ये चीज़, लाइक कि हमारे स्टूडियो में स्टेफन स्पेंडर आए थे. ही गेट टू नो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि स्टेफन स्पेंडर इज़ अ ग्रेट पोइट, इंग्लिश पोइट. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू. द गॉड दैट फेल्ड वॉज अ कंपाइलेशन ऑफ 6 essays written by 6 eminent writer. Eminent means important, prominent, namely Andre Gide, Richard Wright, Ignazio Silone, Arthur Koestler, Louis Fisher, Stephen Spender. In each of the essays, the respective writer described their journey into communism and their disillusioned return. ये जो गॉड दैट फेल्ड है, इसका जो नाम है गॉड, यहाँ पे गॉड वर्ड जो है ये बोला है कम्युनिज़म के लिए. और ये जो ऐसे राइटिंग थी, ये कंपाइलेशन थी 6 एसेस को मिलके एक बुक तैयार की थी, जिसके डिफरेंट राइटर्स थे. उनमें से एक राइटर थे स्टेफन स्पेंडर. हर ऐसे के बीच में हर राइटर ने ये चीज़ डिस्क्राइब की थी कि उनकी जर्नी जो है कम्युनिज़म की वो कैसे स्टार्ट हुई और उनका रिटर्न जो है उससे वो कैसे हुआ.